Bismillahirrahmanirrahim class, welcome to our online classes. Today it is our biology lecture. So we are going to start enzyme chapter number 6 that will be convenient for you during online classes. So open your chapter number 6 enzyme. It is on the page number 107 to 108. So open 107. As you know, there are lots of different chemical reactions that take place in a body, in a living organism. In all the animals, plants, there are several thousand kind of chemical reactions. तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हजारों इकसाम के रिएक्शंस चल रहे होते हैं और ये रिएक्शंस जो हैं इनको कोई कंडक्ट करवा रहा है, कोई स्टार्ट करवा रहा है, इसमें सबस्ट्रेट चाहिए जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सेवरल थाउजेंड केमिकल रिएक्शंस हैं इनको कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें एंजाइम का क्या रोल है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि पेज नंबर 107 में एक डेफिनेशन है मेटाबॉलिज्म की। ये जो हमने कहा एवरी काइंड ऑफ द रिएक्शन इन द सेल दैट इज मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? Metabolism means all the reactions that take place in living organism, in living organism cell. All the reaction जो कि cells के अंदर हो रहे होते हैं उनको हम collectively metabolism कहते हैं. So mark this definition on page number 107 in blue box. आप देखिए blue box में इसकी definition लिखी हुई है, इसको mark कर लें कि metabolism are the all the chemical reactions in the cell. So these are all reactions in cell. Okay, now we will discuss what are the two types of metabolism. reactions की दो इकसाम क्या हैं, तो इसके लिए भी आप देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ को स्किप करते हुए हम फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ के स्टार्ट में अगर देखें तो वहां पे दो टर्म्स हैं कि there are two types of metabolism. The types are anabolism and catabolism. So anabolism, first of all anabolism. The term anabolism refers to ऐसे रिएक्शन जिसमें छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन करके बड़े मॉलिक्यूल बना दें. Those reaction in which small molecule join to form large molecules, these reactions are called anabolism. So anabolism की एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो one of the best example of anabolism is photosynthesis. Photosynthesis is the reaction in which carbon dioxide and water combines and make a large molecule that is glucose. Photosynthesis वो रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाते हैं. So that's why we say photosynthesis is a anabolic reaction or it is an example of anabolism. So again the definition was that anabolism is any reaction in which small molecule join to form the large molecule. So anabolism. Now the second type of metabolism is catabolism. So catabolism, what is catabolism? Catabolism वो तमाम रिएक्शन जिनमें बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं. लेट्स rephrase its definition कि any reaction in which large molecules are broken down and they are converted into small molecules, those are called catabolism. Example for this is respiration and another example is glycolysis. So we will take this example that's easy for you. आसान एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस की कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, या सेल के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसको दो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोलाइसिस में. ठीक है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं. ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके दो छोटे मॉलिक्यूल पाइरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है. So in pyruvate, the large molecule of glucose is broken down into two molecules of pyruvate. So we will write it
glucose is broken down into two molecules of pyruvate. So pyruvate are small and glucose is large molecule. तो एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोलिसिस ने, तो ये रिएक्शन है कैटाबोलिज्म. एंड एनाबोलिज्म की एग्जांपल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, अ लार्ज मॉलिक्यूल. ये एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, एक एनाबोलिक रिएक्शन की, जिसमें ये स्मॉल मॉलिक्यूल को लार्ज मॉलिक्यूल में convert कर दिया. So here we just completed our 3 short questions. These are 3 short questions. What is metabolism? What is anabolism? What is catabolism? Now next definition in the paragraph number 2 you will see it is in bold alphabets. It is biocatalyst. We call enzyme biocatalyst. हम एंजाइम को बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं बिकॉज इन केमिस्ट्री यू हैव डिफाइंड कैटलिस्ट इज एनी सब्सटेंस दैट कन्वर्ट्स सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट एंड विदाउट बीइंग चेंज्ड. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्टेंट्स को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे लेकिन खुद उसमें कोई चेंज ना आए आफ्टर द रिएक्शन, जस्ट ये हेल्प कर रहा है, उसको कहते हैं कैटलिस्ट एनी रिएक्शन में. लेकिन क्योंकि ये एंजाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर ये रिएक्शंस को हेल्प करते हैं रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, तो इसको हम जो है बायोकैटलिस्ट कहते हैं. एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड बायोकैटलिस्ट. एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड बायोकैटलिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई? बिकॉज़ एंजाइम कन्वर्ट सबस्ट्रेट into product, but enzyme do not change. एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे इसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, यहाँ पे कई एंजाइम होंगे, ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट किया, इस दौरान भी कई एंजाइम यहाँ पे होंगे, लेकिन वो एंजाइम अपने आप को कन्वर्ट नहीं करते. एंजाइम डू नॉट कन्वर्ट देमसेल्फ. एंजाइम do not change in shape, and enzyme can be used again and again after the reaction. So enzyme can be used again and again. enzyme को बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है. enzyme can be used again and again after the chemical reaction. So these are the biocatalysts. So ये क्योंकि कैटलिस्ट हैं, ये रिएक्शंस को रन करते हैं, रिएक्शन को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं. तो अब देखते हैं कि ये बायोकैटलिस्ट जो एंजाइम है ये कैसे काम करते हैं. ठीक है, ये कैसे काम करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड पैराग्राफ में एक वर्ड है कि these are biocatalysts and they lower the activation energy of reaction. तो what is activation energy? पैराग्राफ नंबर 3 में जो वर्ड है एक्टिवेशन एनर्जी, और कहा गया है कि एंजाइम जो है एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं, इस वजह से ये एक रिएक्शन को तेजी से कंडक्ट करते हैं या उसको जल्दी से कन्वर्ट कर देते हैं. तो वो कैसे है आइए वो देखते हैं. तो here एक रिएक्शन था हमारे पास जिसको स्टार्ट करने के लिए पहले आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी. यहाँ पे सबस्ट्रेट था आपका जिसको आप रिएक्टेंट्स भी कहते हैं, लेकिन ये रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट बने, यहाँ पे एनर्जी आपको देनी पड़ी. तो पहले विदाउट एंजाइम जब ये रिएक्शन कंडक्ट कर रहे थे तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी यहां तक देनी पड़ी. When you convert a substrate or reactant into product, you have to give some initial energy
in the form of activation energy. For example, if you want to burn woods, you will lit up the match box. आप मैच बॉक्स को लिट अप करेंगे, उसको जलाएंगे, तो जो पहले मैच बॉक्स को या एक तीली को जलाया, ये आपने एक्टिवेशन एनर्जी दी, एंड देन द वुड्स स्टार्ट बर्निंग एंड द रिएक्शन कन्वर्ट द वुड इनटू एशेस. सो ये रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी. नाउ व्हाट डज एंजाइम डू फॉर अस? एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. कि एंजाइम क्या करेगा, अगर यहाँ पे हम एंजाइम ऐड कर दें तो यही सबस्ट्रेट को कम एक्टिवेशन एनर्जी पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा. सो नाउ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड. Now you just have to give this amount of the activation energy and substrate are converted into product. This diagram is mentioned on the page number 108. You can have a look from it there. Okay. So again, पहले हमें एनर्जी इतनी देनी पड़ रही थी इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. एंजाइम आया, अब आपको इतनी एनर्जी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी एंजाइम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. सो मार्क दिस डेफिनेशन from paragraph number 3. All chemical reactions require activation energy. It is defined as minimum energy required to start a reaction. The need for the activation energy acts as a barrier to begin a reaction. यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी एक बैरियर है. जैसे अगर यहाँ पे एक स्टोन हो, किसी ने उसको पुश करना है तो पहले ऊपर उसको लेके जाना पड़ेगा. यहाँ पे स्टोन, यहाँ पे जब दिखा देगा तो वो खुद ही रोल डाउन होकर यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन पहले आपको यहाँ तक लेके जाना पड़ता है. इसी तरह रिएक्टेंट्स को पहले एनर्जी थोड़ी सी देनी पड़ती है ताकि वो प्रोडक्ट में खुद ही कन्वर्ट हो जाए. तो ये एनर्जी किसने दी? ये एंजाइम ने दी. सो दिस इज नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑन द पेज नंबर 107, लास्ट पैराग्राफ. Mark a short question here. Last paragraph of page number 107. How enzyme work, or how enzyme convert substrate into प्रोडक्ट्स. ये क्वेश्चन मैंने करते हैं कि कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. सो इसकी डेफिनेशन आप देखें, इसकी डेफिनेशन नहीं, इसके पॉइंट्स कुछ बनेंगे कि लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस 107 पेज देयर आर सम पॉइंट्स. वो पॉइंट्स क्या हैं? लेट्स लुक एट दोज पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तरीका ये है कि एंजाइम चेंज इट्स शेप. एंजाइम अपनी शेप को चेंज करके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को मिला के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है. एंजाइम चेंजेस इट्स शेप टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट. द नेक्स्ट इज एंजाइम reactants to join. जैसे दो रिएक्टेंट्स थे वो आपस में जुड़ नहीं रहे थे, तो एंजाइम को पकड़ के जो है ज्वाइन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा. तो helps to join. And the third one is reduces the requirement of energy. जो हमने पहले भी कहा था, it reduces requirement of energy. तो ये पैराग्राफ याद कर लें कि ये जैसे एक रिएक्शन होना था, उसमें आपको रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिग्री टेम्परेचर चाहिए था, लेकिन जब आप एंजाइम डाल देंगे तो वही रिएक्शन 100 डिग्री पे भी क्या पता हो जाए, एंजाइम पर डिपेंड करता है. इसी तरह इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट
ऑफ रिएक्शन को तेज कर देगा। एक रिएक्शन आप करते, फॉर एग्जांपल वो it would take 1 hour to complete. If you add enzyme, a biocatalyst, that reaction will complete in just 5 to 10 minutes. कहते हैं कि एंजाइम की इतनी पावर होती है, दुनिया में ऐसे भी एंजाइम है कि अगर वो एंजाइम देखें कि उसकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, कितना वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, देयर कुड बी अ एंजाइम दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन अप टू 10 raised to power 10 times. ये how much? This is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 means these much time enzyme can increase the rate of reaction. एक एंजाइम इतने गुना ज्यादा एक रिएक्शन को तेज कर सकता है, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अगर मेरी बॉडी में एंजाइम ना होते तो यहाँ से यहाँ तक हाथ लाने में शायद मुझे सालों का अरसा लग जाता, लेकिन एंजाइम की वजह से सेल्स के अंदर जो रिएक्शन तेज से हो रही है मसल्स के अंदर, तो ये बात यहाँ से यहाँ लाने में मुझे सेकंड्स का टाइम लगा। दिस इज ड्यू टू दिस एंजाइम। नाउ नेक्स्ट पेज, आवर लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। पेज नंबर 108, ओपन योर बुक्स। द टॉपिक इज इंट्रासेलुलर and extracellular enzymes. Intra means within cell, those enzymes that work within cell, and extracellular, those enzymes work outside the cell. So these are two types of enzyme. So these are also two types of enzyme. One is intracellular, one is extracellular. The first one, intracellular, those within cell. Those enzymes that are produced by cell to work within the cell, that catalyze the reaction within the cell, are called intercellular enzymes. And example of intercellular enzyme, for example, the enzyme of glycolysis. Glycolysis or glycolysis enzymes are intracellular enzymes. These break down glucose within the cell. These break down glucose within the cell. Or the other type is extracellular enzyme. These enzymes are produced by cell, but these are excreted out of the cell to work out of the cell. For example, in your stomach, the cells of wall of stomach, these are called gastric glands. They produce an enzyme pepsin, but this enzyme is exported out of the cell into the lumen. ये जो स्टमक के अंदर खाली जगह है, ये स्टमक के सेल से तो बाहर है, स्टमक के अंदर खाली जगह में ये पेप्सिन का एंजाइम ये स्टमक के सेल प्रोड्यूस करके एक्सक्रीट कर देते हैं, तो हम कहते हैं ये आउटसाइड द सेल हुआ, आउटसाइड सेल। और इन्होंने क्या किया, दिस पेप्सिन कन्वर्ट योर प्रोटीन और ब्रोक डाउन योर प्रोटीन, ब्रेक डाउन योर प्रोटीन। ये प्रोटीन पार्ट जो गोश्त आप खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ये पेप्सिन का एंजाइम है जो कि इसको ब्रेक डाउन करता है। तो किसने बनाया, वो स्टमक की वॉल के सेल ने बनाया, लेकिन उसको सेल्स ने अपने से बाहर एक्सक्रीट कर दिया। दैट्स व्हाई दिस इज एन पेप्सिन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। सो किड्स, टुडे योर होम डायरी इज शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ पेज नंबर 107। 107 पे जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, नंबर 1 व्हाट इज एन एंजाइम, नंबर 2 मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, नंबर 3 एनाबॉलिज्म कैटालिसिस की डेफिनेशन, नंबर 4 व्हाट इज बायोकैटालिस्ट, नंबर 5 योर लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर टुडे होमवर्क नंबर 5 था कि हाउ द एंजाइम वर्क, एंजाइम कैसे वर्क करते हैं, एंजाइम कैसे वर्क करते हैं। द आंसर वाज इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 107। So this was your homework. 5 short questions are in your homework. Write down, send these homework short questions to your respective teacher in inbox. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.